class 10th, we'll focus on the next topic in the same chapter, study of compounds nitric acid, that is Ostwald process. So Ostwald process is a very important process, and outline of Ostwald process is there in the preparation of nitric acid. First of all, you have to understand this is not a lab method. It is a manufacturing of nitric acid, which is also known as industrial preparation of nitric acid or commercial preparation of nitric acid or large scale preparation of nitric acid. Any of the question can be asked. एक और चीज़ हो जाएगी large scale preparation of nitric acid. So any of the name can be written, and directly they can ask you name the process through which nitric acid is being prepared in your manufacturing point or in commercial or industrial points or large scale. So what you will write down the name Ostwald process. You will not give the lab method. That is a wrong answer. So this entire Ostwald process is divided into 3 steps: step 1, step 2 and step 3. And these 3 steps takes place in different chambers. Actually diagram is not there, no labeling and all diagram is there, but still I'll show you the diagram how it looks like. So there are 3 steps. The first step takes place in the catalytic chamber, the second step takes place in oxidation chamber, and the third step takes place in absorption tower. So I'm showing you the diagram where or how these chambers looks like. Now this is the diagram. It's there in your book for Ostwald process. So you can see this is the catalytic chamber, this is your oxidation chamber, and the last one is your absorption tower. Each chamber or each tower has different reactions, डिफरेंट रिएक्टेंट्स. ठीक है, रिएक्शन भी फ़र्क होते हैं और रिएक्टेंट भी से फ़र्क होते हैं. रिएक्शन बिल्कुल अलग चलती हैं, कंडीशंस बिल्कुल अलग होती हैं. ठीक है, तीनों में अलग अलग हैं. और एंड में यू विल गेट व्हाट, नाइट्रिक एसिड. नाउ लेट्स टेक दिस थिंग. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैम्बर, दैट इज़ द कैटालिटिक चैम्बर. तो वील डिस्कस दिस चैम्बर, देन वील डिस्कस ऑक्सीडेशन चैम्बर, देन वील गो फॉर द एब्जॉर्प्शन टावर. So I am just talking with the first chamber, that is your catalytic chamber. Now let's focus on it. This particular in what happened in this catalytic chamber, that is the, you have to remember, जैसा नाम है वैसा काम है. Now what happened, that catalytic oxidation takes place. A catalytic oxidation of ammonia takes place to give you नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अमोनिया जो है वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड में. ये याद रखना है आपको, लेकिन आपको मेन रिएक्शन देखना है कैसे होगा. अब अमोनिया रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन. ठीक है, प्लैटिनम. अब कैटालिटिक चैम्बर है तो कैटलिस्ट की ज़रूरत है. प्लैटिनम इज़ द कैटलिस्ट. टेम्परेचर इज़ 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड. इट गिव्स यू 4NO plus 6 water plus 1.5 K कैलोरीज. एनर्जी भी रिलीज़ होती है ये. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बैलेंस करने के लिए हम 4 और 5 लगा देते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ से आपको क्या क्या मिला, रिएक्टेंट क्या है आपके, रिएक्टेंट इज़ अमोनिया एंड योर ड्राई एयर. बेसिकली ये भी ड्राई एंड प्योर होनी चाहिए, ड्राई प्योर अमोनिया एंड दिस थिंग. इन दोनों का रेशियो होता है, एंड दिस रेशियो इज़ अबाउट 1:10 बाय वॉल्यूम. मतलब 1 वॉल्यूम अगर आप अमोनिया लेंगे तो 10 वॉल्यूम आप एयर की लेंगे. कैटलिस्ट आपने कौन सा यूज़ करा है इसमें, यू आर यूजिंग अ कैटलिस्ट दैट इज़ प्लैटिनम गॉज. ठीक, टेम्परेचर इज़ अबाउट 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड. इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है या हीट रिलीज़ हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. कैसी रिएक्शन है ये, इट इज़ अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. अब प्रोडक्ट क्या बने हैं आपके, ये क्या क्या है आपका, ये स्टीम इज़ फॉर्म, देन दिस इज़ वाटर इज़ फॉर्म. ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है. टेम्परेचर को ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड. अब बेसिकली होता क्या है, इसमें जो अमोनिया आपने यूज़ करी रखी होती है, ये 95% अमोनिया जो है दैट इज़ बीन कन्वर्टेड टू नाइट्रिक ऑक्साइड. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. जैसे अगर आपने 100 लिया है परसेंट इसमें, तो 95% अमोनिया जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड में. तो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू.
ठीक है। और रिमेनिंग जो अमोनिया होती है वो स्टीम बना लेती है आपको, और 1 to N2 स्टीम में वो निकल जाती है, ठीक है। 5% वेस्ट होता है, बाकी अमोनिया 95 अमोनिया जो है इसमें यूज़ होता है। सो आई थिंक दिस स्टेप इज़ क्लियर टू यू। डिटेलिंग इज़ नॉट देयर, आई एम अगेन टेलिंग यू, बुक्स में बहुत डिटेलिंग है, वो सब नहीं है, ओनली दीज रिएक्शंस आर देयर। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ ऑक्सीडेशन चैम्बर, तो जैसा नाम वैसा काम। सो ओवर ये ऑक्सीडेशन, अब इन द प्रीवियस स्टेप यू गेट नाइट्रिक ऑक्साइड, so nitric oxide get oxidizes to nitrogen dioxide, ठीक है। मीन्स NO जो है वो किसमें कन्वर्ट होता है, NO2 में। ये मैंने शॉर्टकट लिखा, रिएक्शन लिखते हैं। NO रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन गिव्स यू 2NO2, 50 डिग्री टेम्परेचर आपको रखना है, और बैलेंस के लिए 2 लगा देना, बस इतना सा स्टेप है आपका। तो बेसिकली ये क्या है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, और इट इज़ चेंजिंग टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। प्लीज़ रिमेंबर अगेन एंड अगेन, टीचर विल नॉट टेल यू कि इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, ये दिस थिंग यू शुड रिमेंबर, क्योंकि मैनी टाइम्स वी आर सेइंग, अगर यहाँ पूछ लिया जाए कि कलर क्या बना है, क्या कैसी गैस का कलर है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। सो प्लीज़ ऑल दीज स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड। नाउ द लास्ट स्टेप और द थर्ड स्टेप जो है आपका स्टेप 3, अगेन इट्स टेक्स प्लेस इन द एब्जॉर्प्शन टावर। एब्जॉर्प्शन टावर मतलब किसी चीज़ का एब्जॉर्प्शन होगा, किसी के साथ वो रिएक्ट होगा। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो NO2 आपका बना होता है यहाँ पे वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होता है। मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड चेंजेस टू नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब ये कैसे होता है, NO2 रिएक्ट्स विथ वाटर प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू HNO3, जस्ट रिवर्स ऑफ योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच यू हैव सीन, उसी का उल्टा कर लो, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए वी आर पुटिंग ओवर हियर। टेम्परेचर इज़ ऑर्डिनरी, नो इश्यूज ऑफ टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड। अब प्रोडक्ट क्या बना है आपका यहाँ, नाइट्रिक एसिड। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। आई एम अगेन showing you with the help of the diagram also these 3 steps. Now let's start with the diagram. Over here the first आपका जो ये है, ये आपका कैटालिटिक चैम्बर है। यहाँ से you are adding your ammonia gas, but you should remember it should be dry and pure. Ammonia gas has been there, dry air has been there, volume we have already seen, 1 volume, 10 volumes, it's passed to the catalytic chamber. This particular catalytic chamber already containing this platinum gauze इज़ बीन देयर, ठीक है, वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब ये जो गैस हैं, ये दोनों गैसेस दे गो एंड दे रिएक्ट्स, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 95% ऑफ अमोनिया इज़ बीन कंज्यूम्ड ओवर हियर। तो 95 जो परसेंट अमोनिया है वो अपने आप को कन्वर्ट कर चुकी होती है इस जगह पर NO, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या मिलता है, NO मिलता है ना, नाइट्रोजन आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, यू गेट इट, इवन यू आर गेटिंग द वाटर ऑल्सो ना, वी हैव सीन द दिस थिंग रिएक्टेंट्स वर देयर। तो ये NO जो होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, अभी यहाँ क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, प्लैटिनम शुड बी देयर एज अ कैटलिस्ट, जो प्लैटिनम गॉज हमने यूज़ करा है। टेम्परेचर इज़ अबाउट 700 to 800 डिग्री सेंटीग्रेड, पीछे यू हैव टू कीप इट इन माइंड। वॉल्यूम्स ऑफ गैसेज इज़ 1 वॉल्यूम 10, बोथ शुड बी ड्राई एंड प्योर। तो यहाँ NO नाइट्रिक ऑक्साइड आपको मिल जाती है। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड आगे जाती है ऑक्सीडेशन चैम्बर पे। ऑक्सीडेशन चैम्बर में दिस नाइट्रिक ऑक्साइड गेट ऑक्सीडाइजेस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अब जब ये गैस यहाँ से बाहर निकलेगी, कौन सी निकलेगी बाहर, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, आगे हम कहाँ, यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान रखना है, टेम्परेचर कितना हमने यूज़ करा था, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, कम नहीं ले, ज़्यादा बढ़ाया नहीं है, कम कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, आपको मालूम है कि ऑलरेडी हीट लिबरेटेड हो रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो NO जब NO2 में कन्वर्ट हुई, तो यहाँ पे आपको NO2 मिल जाएगी इस चैम्बर पे। नाउ दिस NO2 विल फर्दर मूव फर्दर एंड इट इज़ रीच टू द एब्जॉर्प्शन टावर। अब एब्जॉर्प्शन में क्या है, NO2 क्या है, सॉल्युबल इन वाटर होता है। स्टार्टिंग में ही हमने देखा था डिकम्पोजिशन में, तो रेडिश ब्राउन कलर की, देखो यहाँ रेडिश ब्राउन ही है, ये निकल रही है गैस, जब यहाँ आएगी वाटर से रिएक्ट करेगी तो ऑटोमेटिकली नाइट्रिक एसिड यहाँ मिल जाएगा। ऑर्डिनरी टेम्परेचर में भी काम हो सकता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। क्वार्ट्स हमने रख लिया है ताकि जो वाटर का फ्लो हो वो आराम से जाए, और ये ना हो कि मतलब आपने ऊपर खाली रखा है गैस है तो वो मिक्सिंग नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम लोग क्वार्ट्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और ऊपर से वी आर एडिंग वाटर फ्रॉम द टॉप।
ईज़िली क्या है कि ये एसिड यहाँ बनेगा, टाइम टेकिंग होगा, आराम से धीरे धीरे पानी आएगा और गैस भी आराम से उसमें जाएगी, दोनों को टाइम मिलेगा मिक्स होने का एंड यू गेट नाइट्रिक एसिड ओवर हियर. आउटलेट है, फ्रॉम हियर यू कैन ईजिली रिमूव द नाइट्रिक एसिड. सो आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू. ये फर्स्ट चैम्बर था जिसमें आपने NO बनाया था. ये सेकंड चैम्बर है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यू फॉर्म. द थर्ड चैम्बर वेयर योर नाइट्रिक एसिड वॉज फॉर्म. यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड बनी, ऑक्सीडाइज हुई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जो रेडिश ब्राउन कलर था. फिर बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन हुआ वाटर के साथ, तो उसमें कलरलेस आपको नाइट्रिक एसिड यू विल गेट. So this is the important manufacturing of nitric acid. I think this point is clear to you. So hopefully please learn this just the one page of the outline of Ostwald process there. So I have already given you the steps, I have explained you, and it is there in your book on page number 187, and diagram is there on 186. We are talking about Viraf. So you can see it from there also. Small questions are asked from here also. Please learn that page, very important page, and it comes in your board examination. So I think this is clear to every one of you.